Hello and welcome to yet another inspiring episode of Thrive Podcast, brought to you by Dr. Zakia's NLP and Business Hub, where we explore real stories, real transformation, and the mindset behind extraordinary success. I am your host, Jyoti Upadhyayala, Mindset and NLP coach, and board member of Dr. Zakia's NLP and Business Hub. And today I'm absolutely honored and thrilled to welcome a powerhouse of purpose, resilience, and impact, Mrs. Rehnuma Rafiq Dadani. Rehnuma is a visionary educator, dynamic leader, and an unstoppable force of empowerment. With over 18 years in the education space, from principal to dean of institute and academic head, she has transformed systems and lives with her strategic leadership. But her journey doesn't stop here. As a single parent, she has beautifully balanced personal and professional responsibilities while also nurturing her creative side as a writer, artist, and founder of Rehbar Arts, a beautiful initiative that combines art and empowerment. And beyond all this, Renuma plays active leadership roles in several organizations, working relentlessly to uplift communities, especially women and youth. So her journey is one of courage, creativity, and deep contribution. And I can't wait for all of you to experience her energy and insights today. So, Renuma, welcome to the Thrive podcast. It's a true privilege to have you here with us. Hi, hi Jyoti, how's you? I'm doing great and I'm perfectly all right. So, how are you feeling today and how are you doing? Yeah, yes, doing good. And thank you for accepting our invite to be as a guest speaker of this podcast. And I'm Almost sure. for since so long we were planning Yeah, to we get have in been touch, planning correct? exactly. So many things happen in between, but yes, it's always good to bounce back to our purpose, to what we have thought about, and why we are doing this podcast. Basically, to inspire more people into their transformation journey. So welcome back again, and so let's begin. I just want, as I was sharing about you, so something really inspired me. Your story really inspired me. So I have few questions that I would be asking you, Yes. so that our viewers they also understand, like what is there, what all goes into a transformation journey, right? So, Ranuma, looking back was like where one second. So when your journey started, say since your journey has been very inspiring, so can you take us back to the beginning? What ignited your passion for education and leadership? See, my passion for the education, it gets started from at the like first I was like a very much a lady who get into the attack in household chores and everything. But when I gave a birth and I became a mother of my child, so at that time, I realized that I had to do something because I was been struggling too much. One for the like to run my own family and everything. So at that time, I thought that if I would have studied more, Mm. and then I started the studying journey of mine after when I gave a birth to my son. And in that case, I learned that I have gone through lots of professions. I found the teaching profession is the most noble profession because you can see in the entire world, even a space scientist also, but he or she has to go to the teachers, schools, colleges, everything, right? So Exactly. teacher is the best noble profession who is creating another professions, right? So like I was getting lean and like from childhood, like whenever I used to play, जब लड़कियां खेलती होती है वो बर्तनों से घर घर किचन किचन फ्रेंड्स के साथ like that. So at that time also I used to play as a teacher only. I always used to Okay. have a कुछ अपने टीचर्स की वो करना घर पे आके. How my teacher used to teach in the class, how my teacher used to speak in the class.
I used to come home and I used to write. At that time, we were not having a board at our house. So I used to Hmm. write on the wall. Hmm. So like it was there in my mind that if I get a chance in future, then I would go for the teaching. Profession. But when I get into the teaching, like my experience went on, like and I learn and I love to learn. Till date, if someone used to tell me, na, okay, you have to do this course and that is more impactful for you. So like I say, yeah, okay, that is more okay. I Hmm. used to learn and still till date I like to learn and I do lots of many things. कि कुछ ना कुछ जिंदगी है, ऐसा नहीं है कि भाई हम टीचिंग पे ही स्टक रहेंगे, सीखना चाहिए। एग्जैक्टली। और और कंटिन्यूअस लाइफ, लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, है कि क्योंकि लाइफ को अपग्रेड करना, अपने आप को अपग्रेड करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए हम पहले वो जैसे टेलीफोनिक में देखते हम लोग लोकल फोन यूज करते थे जो हम रिसीवर से उठाते थे। नाउ वी आर कनेक्टेड विद द मोबाइल फोन्स, so we have already upgraded, so like the human beings also you can see पहले आप देखिए लड़कियां इतना नहीं पढ़ती थी। हम्म। 10th कंप्लीट किया है उसकी शादी करा दो, या। that was the mindset, and the thing which that happens with me, 10th हम्म। कंप्लीट हुआ, it was got engaged and like it was starting के इसकी शादी करा दो। हम्म। But that afterwards the realization what came and like give me an inspiration to start study, where my family has supported me, my हम्म। parents, my brother, they all supported me and I get into my education. But हाँ, आपने जो कंटिन्यू स्टडी किया होता है ना, उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है और एक एक्सटर्नल जो आपने स्टडीज किया होता है उसका इम्पैक्ट अलग होता है। But then also from that studies case also, but I got a very good opportunities and I'm very much thankful. Every day I used to give gratitude to the God that where I am and what I am. It's like never I thought. So that give me an inspiration to like, but somewhere, somehow, I have been stuck so many times. First, my nature was like an abla nari. उसको एक थप्पड़ मारो कोने में बैठ के रोती रहती थी। My journey was like that. हम्म। I used to be like that. लेकिन फिर जब एक ऐसा टाइम आया where I met Dr. Zakia. तो एक बार एक क्वेश्चन है I कि learned. आप जब आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे या उस जर्नी में Hmm. चल रहे थे, तो आपका एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट क्या था जिसने वो ट्रांसफॉर्मेशन को स्पार्क किया, इग्नाइट किया? Like it was getting been insulted every time. हम्म। बोले कि your looks are not good. It was being said by my in-laws, like your skin is black. So हम्म। this was been insulting. पढ़ी लिखी है तो क्या है? They all were like having ego problem. They were very much jealous. Everything was going on and like they used to continue tell like that only. हम्म। So it was always been के और and मेरी मम्मा ऐसा बोलती थी कि उनके बोलने से कुछ नहीं हो जाता. You are already you are having your lots of creativity in you. तो हम्म। वो मत देख के वो लोग तुझे लुक्स पे ताने मारे, बट यू आर हैविंग योर ओन आइडेंटिटी, यू आर हैविंग योर ओन क्रिएटिविटी, क्रिएट हम्म। योरसेल्फ। When my son was like around just only for 9 months, I used to drop into my mama's lap and I used to go and I used to do teaching in tuition classes. First, I started my journey with the tuition classes. There, here in Surat, it was very famous and a very good tuition class where I started my journey. हम्म। Then I started studying. Then in that between, after completing my study, I moved to the school and I had my first break in 2011 as a teacher, and I started my journey. तो एक जो आपने, आपकी मम्मी ने एक सेंटेंस बोला, क्रिएट योर सेल्फ, आई थिंक दैट हैज, Hmm. उस वो आपको उसने वो दैट बिकेम योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बोल दो या स्पार्क Yes. बोल दो या गाइडिंग लाइट बोल दो, एंड यू हैव नॉट स्टॉप्ड आफ्टर दैट, राइट? तो Yeah, इस I never stop. नहीं, उसमें क्या होता है कि देखिए हम वी फीमेल्स वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ, पहले हमारे उसमें क्या दिमाग में डाला जाता है, आप बड़े हो गए हो, आपने पढ़ाई की तो 10th कंप्लीट किया, आपकी हम्म। शादी करा देंगे। तो वो शादी कराने के बाद वो एक दूल्हा आएगा, एक प्रिंसेस आएगा जो आपकी पूरी लाइफ बदलेगा, वो आपका ख्याल रखेगा। अब लेकिन आ कम्युनिटी इट वाज सेट के अगर आप शादी करोगे उससे पहले आप अगर कहीं पे भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो
यू हम्म। कांट गो अलोन। तो लाइक माई मदर ऑलवेज यूज टू से, जो भी हो शादी के बाद करना, घूमना जाना शादी के बाद, एवरीथिंग। आई गॉट मैरिड, देन थिंग्स वोंट हैपन व्हाट माय ममा सेज। वो एक हर लड़की के दिमाग में होता है कि वो राजकुमार है ना, उसको कहाँ का कहाँ पहुंचाएगा। या वैसा कभी होता नहीं है। तो होते हैं, मैं या ऐसा नहीं बोल रही हूँ, होता है। तो दोनों क्या की आपके कंपैटिबिलिटी आपके और समझ एग्जैक्टली। दोनों साथ में होती है। लेकिन फिर एट द सम आफ्टर कुछ साल बीतने के बाद मैंने बोला मम्मी ये ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी बोले कि हमारे गुजरातियों में एक कहावत है, 10 से 10 को फरे। मम्मी ऐसा बोलती थी, आफ्टर कंप्लीटिंग 10 years he'll change। My mother used to say या me वो like that। चेंज हो जाएंगे या हम चेंज हो जाएंगे। My mama always used to say me like that। क्या राइट। बोले, सबर रखो तुम लोग को है ना, सबर, यू डोंट हैव पेशेंस, एग्जैक्टली। ऐसा। तो तो वो जो वो एक पड़ाव था, मतलब वो जो एक आपका वो फेस था जब आप शादी हो गई, शादी के बाद एक होता है ना कि रियलिटी चेक, हम लोगों को जो बताया जाता है और जो दिखता है बहुत डिफरेंस हो जाता है। बहुत डिफरेंस तो होता है। उस टाइम पे जो आपके अंदर जो चैलेंजेस चल रहे थे वो कैसे थे, मतलब वो क्या थे और सी आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सी द फर्स्ट चैलेंज वाज फॉर मी लाइक, एक परियों की कहानी होती है वैसे मेरी एक स्टोरी है। आई जस्ट टेल यू इन वेरी शॉर्ट। वो कि वो मैं एक पापा की परी थी, जो आज के जमाने के जो जेंजिस बोलते हैं, लाइक दैट आई वाज लाइक दैट फॉर माय फादर। तो पापा की परी ने कभी कुछ ऐसे वो हार्डशिप्स देखे नहीं थे। आफ्टर मैरिड आई यूज टू लिसन ऑल द, बिकॉज मेरे घर का माहौल इज टोटली डिफरेंट एंड देयर इट वाज टोटली डिफरेंट। तो वो सब देख देख के आई वेंट इनटू अ वेरी हायर स्टेज ऑफ डिप्रेशन। ओ। बिकॉज देयर आई यूज टू गेट स्टक 48 hours मैं बेहोश रहती थी, 54 hours बेहोश रहती थी। आई लॉस्ट माई मेमोरी, आई लॉस्ट माई आईज। हम्म। So like that phase my parents has faced for me, and my son was of only 1.5 years. He used to sit beside me and he used to like every day, mama, 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 but I was not able to speak with him. But at that time, like in-laws and my ex was not able to understand. They were telling, ये तो नाटक करती है, बहाने करती है. But the stage what I went through. Then we had a psychiatrist and he told that you should, उन्होंने जैसे जैसे बताया, we had a very counseling and all that sessions have done for me. And then he used to suggest कि इसको आप है ना involve कीजिए ऐसी कोई activity में. तो sir, like my brother took a decision and he told me that you have to start studying, and like you are going to join the school and you will be busy with the students and all that, you do all this activity, leave them. हम्म। But then also I used to stuck into, भाई नहीं, my husband, my in-laws, yeah, wo, I was getting to it. Then also, but I was going on doing and doing and doing and doing, but then still that I didn't get any of the response. I used to manage both the things. I used to study, I used to manage my household also, like everything, and I used to do job also. My son was also very like little a child. बट आई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं अपने घर को और फैमिली को देती थी, जॉब को देती थी, और उसके बाद अपने बच्चे पे ध्यान दे पाती थी। ऐसा था। फिर वो स्पार्क एक जर्नी में आया, फिर जब मैंने कंटिन्यूअसली अपना ये किया और बहुत कुछ देने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, इतना सब हम्म। सपोर्टिव होने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। देन देयर वाज वो बोलते हैं ना कि एक लाइफ में सबकी जिंदगी में कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं कुछ आ ही जाता है, ऐसा एक करिश्मा होता है। So there was a get together somewhere, and like I attended that session. Like I went and I met Dr. Zakia over there. ओके। हम्म। So like the day one when I met her, I was crying like a very, क्या बोलूं, एक पागलों की तरह, बस मुझे सिर्फ रोना ही आ रहा था, रोना ही आ रहा था। हम्म। किसी के साथ भी झगड़ा कर लूं, किसी को डांट दूं, like I was so much frustrated with that. Then आई मेट मैम, और मैम ने जो मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, टिल डेट यू कैन सी दिस इज द रेनुमा करंटली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। राइट। तो आपने मेरा मतलब मेरे को वो ये भी था कि आपने क्या प्रैक्टिसेस ऐसे किए या आपके कोई मेंटोर थे जिन्होंने आपको मतलब आपकी जो जर्नी में मतलब आपका माइंड सेट को रिवायर किया
और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में किसने डाला करके। तो मेंटोर डॉक्टर तो मेरे जकिया, डॉक्टर जकिया ही है। तो और क्या मैम के आपने साथ प्रैक्टिसेस किए, मतलब डॉक्टर जकिया तो या शी इज़ अ ग्रेट मेंटोर, और उनके अंडर आने के बाद आपने अपने में और क्या चेंजेस लेकर आए अपने माइंडसेट में और अपने रूटीन्स में, अपने हैबिट्स में, कि आप मतलब टिल डेट आप कहीं हारे नहीं हो या कहीं रुके नहीं हो, यू आर कंटिन्यूइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ऐसे क्या बदलाव लेके आए हो आपने उसमें? मैम की एक बात थी, अगर शायद आपने सुनी हो, मैंने तो बहुत बार सुनी है, उन्होंने मुझे बहुत बार गाइड भी किया है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। हम्म। खुद की इम्पोर्टेंस तुम कितनी अपने आप की इम्पोर्टेंस खुद देते हो, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। राइट। तो लाइक फर्स्ट मेरा कैसा था कि मुझे ऐसा था कि वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, मैं लोगों को इम्पोर्टेंस देती थी। हम्म। तो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने मैम की एक ही बात मेरे दिमाग में रह गई थी कि तू खुद को क्यों नहीं देती इम्पोर्टेंस। राइट। मेरा बच्चा, तू दे खुद को इम्पोर्टेंस। दिस लाइन हैज चेंज फॉर मी। हम्म। दैट इज अ वेरी, लाइक क्या बोलते हैं, एक दिमाग में वो बैठ जाती है ना चीज, वैसा वाला था। एग्जैक्टली। तो द डे आई स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू माई सेल्फ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है। कि वैसे हम्म। भी इफ यू आर अ सिंगल मदर, लोग आपके ऊपर पॉइंट आउट करते ही हैं। राइट। बिकॉज एक नेचुरल जो समाज ने जो बनाया है कि भाई विमेन्स आर ऑलवेज अ विक्टिम। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि ये आदि ये कैसे हाँ, आगे बढ़ रही है। बढ़ गई है ऐसा। ऐसा नहीं है। दूसरी मेरे साथ में, तो दूसरी मेरी खुद की फैमिली की अगर विमेन्स होगी, दे आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग दिस। हाँ, हम्म। ये क्यों आगे बढ़ गई, राइट। ऐसा। सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर तो बहुत होता है, बट यस, अगर हमारा माइंड सेट इज इन प्लेस और हम लोग, जैसे आपने कहा कि अगर खुद को हम पहचान लेते हैं। अभी मैं एक मूवी देख रही थी, उसने यही कहा कि तुम्हारा स्टार तुम्हारे अंदर ही है, तुमको हाँ, बाहर लोग क्या कहेंगे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, योर स्टार इज इन योर सेल्फ। तो अगर हम लोग को अपना स्टार मिल जाता है या अपने अपने अंदर का वो एक क्या कहते हैं पावर मिल जाता है, तो हमको बाहर कौन क्या कह रहा है, कौन कुछ कर रहा है, उसकी तो चिंता ही नहीं होती है। इवन सी, अगर प्रोफेशनली भी इधर देखने जाऊं तो लाइक, ओ यू आर वर्किंग इन विच स्कूल, ओ वेयर यू आर डूइंग लाइक दिस डेज, वेयर आर यू। बट मुझे ऐसा है कि आई शुड बिल्ड माई नेम, माई आइडेंटिटी। एग्जैक्टली। मैं क्यों किसी किसी स्कूल की वजह से मैं जानी जाऊं। हम्म। वाई आई एम नॉट रिकग्नाइज बाय माई वर्क। मेरी ये अच्छा। सोच है। हम्म। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये जॉब करती है, अगर इतनी बड़ी पोजीशन पे है, तो क्यों हमको एज अ गेस्ट नहीं बुला रही है, या वो अपनी स्कूल की कहीं पे पोस्ट नहीं करती। अरे बाबा, दैट्स माय पर्सनल व्यू, दैट्स नॉट योर पर्सनल वो होना चाहिए। बट यू सी, ये लोगों को इतनी हद तक हमारे बारे में एक वो बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी रहती है कि व्हाट शी इज डूइंग, वी शुड इंटरफियर इन अर लाइफ, वी शुड पीपर इन अर लाइफ। बट क्योंकि सोशल एंड आई मीडिया एम, का जमाना है, सब कुछ बाहर दिखाना है, हाँ तो हाँ लोगों को हाँ और क्यूरियोसिटी की कर क्या रही है, बाहर तो कुछ नहीं दिख हाँ, रहा है। तो दिखा अंदर रहा क्या है, चल हाँ, रहा है, वो चल क्या रहा है। चल क्या बस रहा वही चीज है कि व्हाट शी इज डूइंग। है। एग्जैक्टली। बट मेरा सोचना तो भाई, मैंने जब मैं आपके बारे में एट ऑल मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मुझे नहीं जानना है आपके बारे में, तो व्हाई आई शुड गेट इन टच विथ यू ऑल। एग्जैक्टली। मुझे सिर्फ एक ही गोल है, दैट व्हाट फॉर मी इम्पोर्टेंट इज माई सन, हम्म। माई फैमिली एंड मेरा काम। राइट। तो एज अ सिंगल पेरेंट, आपने कहा कि यू वर अ सिंगल पेरेंट, आपका एक बेटा है, तो और मतलब आप लीडर भी हो, तो कैसे आपने इसको बैलेंस किया अपने, लाइक यू नो, इतने डिफिकल्ट प्रोसेस में, इतनी डिफिकल्ट जर्नी में आपने कैसे अपने आप को बैलेंस रखा, वो मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल बैलेंस कैसे बनाए रखा? जी, मेंटल, अभी देखिए, अगर मैं किसी की प्रॉब्लम सुनती हूँ तो लाइक आई समटाइम्स गेट इन वेरी इमोशनली टच विद दैट। बट फिर हम्म। कभी मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं उससे इमोशनली टच्ड हो गई तो आई कैन गेट इन टू वर्क। अब समझिए कि बीइंग अ लीडर, like we are having lots of staff in our schools and we need to manage, everyone has their problem, how I have faced. So हम्म। sometimes we need to balance and we need to understand the problem। और जब तक हम लोग किसी की बात सही से सुनते नहीं है, और पहली बात, किसी को गलत जज नहीं कर सकते। हम्म। कुछ लोगों में जो प्रॉब्लम्स होती है वो जज करनी, हम्म। कि सामने वाले को तुरंत ही जज कर लेते हैं।
बट आई नेवर यूज टू जज। अगर अभी आपने मुझसे बात किया, यू हैव शेयर्ड योर प्रॉब्लम, सो इट्स बिटवीन मी एंड यू। आई विल हम्म। नॉट गो एनीवेयर एल्स एंड आई टेल द होल वर्ल्ड, ओ इसकी तो ये प्रॉब्लम है और इसकी तो ये प्रॉब्लम है। इफ you had thought that this person is very good, and from sharing with her, it's your peace of mind, then it's well and good for me. So राइट। like that I used to manage both the things. Like I हम्म। had to play somewhere for my son as a role of a father, also as a role of a mother also. राइट। But I am very much blessed that I had a very what I gave to my son. Like I'm very much blessed that what I gave him, what I taught him, what his thinking is there, how I raised him. So I'm totally too much like having a gratitude to God. ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये एक मेरे अंदर एक ऐसा एक स्ट्रेंथनेस दिया। हम्म। वरना जो कभी एक समझे कि एक चम्मच उठाने के लिए है ना, घर में काम वाली को बोलती थी कि भाई चम्मच उठा दे। हम्म। एंड फ्रॉम दैट जर्नी टू दिस जर्नी, दैट अगर आज मेड नहीं आए तो मैं बर्तन भी खुद हाथ से मैं घिस लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो एक्चुअली जो आपकी सेल्फ लव जर्नी है और जो ग्रैटिट्यूड की जर्नी है, दैट हैज़ मेड यू मोर रेजिलिएंट, मोर स्ट्रॉन्ग। और आपके मेंटोर डॉक्टर जाकिया तो है ही हैं, शी इज़ योर गाइडिंग फोर्स। तो मतलब कहीं पीछे मुड़कर देखने का आपको कहीं मतलब आई डोंट नो कहीं मौका भी नहीं मिला होगा। और आपका मुझे जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड अ ग्रोथ माइंडसेट कि ठीक है, मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। और प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे लाइफ में। फिर भी जैसे मेरी जो द सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है वो जल्दी मेरे फैमिली से मैच नहीं करती है, इवन मेरे बेटे से भी नहीं करती है। बट देन ऑल्सो आई यूज टू मैनेज। मैं जितना हो सकता है उतना ट्राई करती हूँ अपनी फैमिली को भी समझाने की। लेकिन हाँ। लाइक माई पेरेंट्स आर टू मच लाइक डाउन टू अर्थ। लोगों के दिमाग में उनके लिए क्या है, आई डोंट थिंक। बिकॉज देखिए, लोग हमेशा जज करते हैं, हम्म। बट मेरी मम्मी और डैडी का एक ही वो है कि जो होता है उसको होने दो, और जिसने जितना गलत किया है वो ऊपर वाला उसके साथ करने ही वाला है। तो तुम लोग है ना उसका हिसाब लेने के लिए अभी मत बैठ जाओ। और राइट। हम लोग को कभी कभी ऐसा दिल में हो जाता है, लाइक वी यूज टू थिंक कि भाई हमारे साथ ये चीज गलत हो रही है तो व्हाई वी कांट गिव द आंसर टू देम। एग्जैक्ट, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आपको लेट गो करने को कहा है कि छोड़ो, जो हो गया हो गया। हाँ। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। बहुत ही मतलब बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन में। वो लोग उसी को पकड़कर पास्ट ट्रॉमास में रहते हैं, हील नहीं होते हैं। कितने सारे भी हीलिंग प्रोग्राम, ये हो गया वो हो गया। मेरे डैडी जो है लाइक ही इज अ बिजनेसमैन। हम्म। बट उनका एक ही दिमाग में सर, किसी को अपनी लाइफ में हीरो मत बनाओ। अभी हीरो मत बनाना यानी आपके दिमाग में क्या है, आप मुझे बताइए, हीरो मीन्स व्हाट? हीरो में से उसको इम्पोर्टेंस, किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं देना। यस। राइट। हाँ, बस मेरे मतलब डैडी का खुद बोलना का वही है कि इम्पोर्टेंस, हाँ, खुद को इम्पोर्टेंस दो, हाँ, दूसरों को इम्पोर्टेंस मत दो। राइट। किसी को इतना हीरो मत बनाओ अपनी लाइफ में कि तुमको ऐसा लगे कि ये हीरो के बिना मुझे चलेगा नहीं। एग्जैक्टली exactly, हाँ। बहुत बहुत ही तो वो बहुत ही स्ट्रांग लेसन और बहुत ही पावरफुल लेसन है। क्योंकि हम लोग हाँ। यूजुअली सबको हीरो बना देते हैं, खुद की हीरो को पहचानते ही नहीं है। राइट। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे एक और बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है कि ये जो आप लीडर हो, राइट, आप एक हम्म। सिंगल पेरेंट हो, आप एक हम्म। एडुकेटर हो, तो ये क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन आपके पर्सनल हीलिंग एंड ग्रोथ में उसने कितना काम किया? सी क्रिएटिविटी तो कैसा है कि लाइक फ्रॉम द चाइल्डहुड आई ऑलवेज यूज टू स्कोर गुड मार्क्स इन ड्राइंग समथिंग। ओके। Even in my 10th standard also, I used to take the optional subject as a drawing, हम्म। and I love to do. अभी जैसे लाइक अभी कैसा हो गया है, सोशल मीडिया पे कैसा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो राइट। अभी लाइक वी यूज टू रिकॉर्ड आवर वीडियोस ऑफ वर्क एंड वी यूज टू हैड अ लाइक मार्केट में सेल लगाने जैसा है, तो हम हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया पे हमारे खुद का सेल लगाते हैं, right? हम्म। But हम्म। in those days, where when we were not having any of the social media, I would like to tell you, in 1986, 87, at that time, we were not having social media. हम्म।
because mine born is from 80s. So at that time we were not, then I'm from the childhood. When I was small, like in the school, it was giving like I used to do drawing only. सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स उसी में आते थे. ओके. आज की डेट में भी अगर कोई भी ऐसा कोर्स मुझे दिखेगा, अगर ड्राइंग का अगर कुछ वो चीज मुझे नहीं आती है, तो मुझे क्यूरियोसिटी रहती है पहले मैं उसको लर्न कर लूं. हम्म. तो ये एंड रहबर राइटिंग. रहबर आर्ट्स कैसे डेवलप हो, मतलब उसी से निकला कि क्या है एक्चुअली? शेयर या सम लाइक, लाइट ऑन सी, दैट रहबर आर्ट्स. I was creating trousseau packing. I used to do canvas art. I used to create anything waste from the best, gift ideas, ये वो. लाइक वो बोलते हैं ना कि वेस्ट में से बेस्ट बनाना कोई भी चीज, तो मुझे अच्छी लगती है. आज की डेट में भी अगर मेरे घर में कुछ पुराना हो जाता है, अभी होते हैं भाई, किसी को ऐसा होता है कि भाई अभी पुराना हो गया तो उसको निकाल के हम नया लेकर आते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज थोड़ी पुरानी हो गई और अगर वो पेंटिंग से अच्छी हो जाती है और नई दिखती है, तो उसको यूज करने में क्या प्रॉब्लम. हम्म. अब वो लोगों का दिमाग मुझे नहीं पता. हाँ, ये तो ऐसी ही होगी, उसको पैसा नहीं खर्चना होगा, कंजूस है. बट अगर है मेरे पास, मैं वो चीज को यूज कर सकती हूँ अपनी क्रिएटिविटी को, तो मैं वो चीज को नया बना के क्यों यूज नहीं करूँ. एब्सोल्युटली. सब में नहीं है ना वो क्रिएटिविटी, अब मुझ में तो नहीं है कि मैं किसी भी पुरानी चीज को नया बना दूं. देखिए, मेरे फादर का बिजनेस है साड़ीज का. हम्म. राइट. So like my father used to bring always a very good quality of sarees, and I हम्म. love. And like I used to wear in the school also sarees. I don't have any problem issues. Like see, but I never mix up my personal and professional level. When I used to go outside, I used to wear hijab and everything. But where my profession is there, I used to just do my professional work. So हम्म. I don't take all these things in between like that. तो जब डैडी साड़ीज लेकर आते ना, तो कुछ इतनी अच्छी अच्छी साड़ीज होती है, तो मैं उसमें से ऐसे डिजाइनर ड्रेसेस बनवाती हूँ कि मेरी फैमिली भी बोलती है तूने साड़ी में से बनवाया है. हम्म. ऐसा. तो लाइक उसमें भी मैं अपनी क्रिएटिविटी कर देती हूँ. राइट. तो ये रहबर आर्ट्स इज व्हाट, मतलब क्या है ये? रहबर मीन्स यानी रास्ता दिखाना, सही रास्ता देना, ओके. रहबरी करना, किसी को हम्म. सही रास्ता दिखाना. तो दैट इज लाइक इस्लामिक वर्ड. हम्म. एंड माइन आल्सो रहनुमा. हैड अ लाइक, रहनुमा का मतलब भी यही होता है कि वो सही रास्ता दिखाना. ओके. रहबर का भी मतलब वही होता है. हम्म. हम्म. So like it was connecting with my name, so I Rebel Arts, and like it was, वो बोलते हैं ना कि हमको कुछ अभी सोशल मीडिया पे तो ऐसा कुछ डिफरेंट होगा तो हमसे लोग कनेक्टेड होंगे. तो I myself has designed my own class name and all things, and like I had started my this arts journey ओके. just for के भाई, as a side source, ओके. एज अ. as a side source. I don't get usually regular income from this, but I love to do. ओके. गॉट इट. वही, अभी मतलब एक किसी क्यूरियोसिटी थी कि क्या है ये, नया हाँ, नाम है तो ये क्या चीज है, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट. नहीं, आर्ट्स मीन्स आर्ट्स. आर्ट्स का मतलब सब चीज उसमें आ जाती है. आर्ट्स में हम्म. सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग ये नहीं आता. एग्जैक्टली. या. आर्ट्स मीन्स क्रिएटिविटी ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. एग्जैक्टली. तो मैं सेल्फ मोटिवेशन, और अभी तो कैसा है, तो अभी मैंने कुछ टाइम के बाद ये सीखा कि भाई हमको हमारा काम ऐसे शो करना है, तो अपने आप को भी शो करना है. So whenever I used to take lectures and everything, so what art I'm performing, I'm just posting. So like that was my thought of mine के Rebel Arts we should start. तो And like एक वैल्यू विच हैज कैरिड यू थ्रू द टफेस्ट टाइम्स, मतलब बहुत मुश्किल टाइम में भी एक वैल्यू आपकी, क्या चीज़ आप किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और आगे बढ़ मे बी अ कोट और या कोई आपका पर्सनल वैल्यू जिसने आपको वो, क्या कहते हैं, वो करेज दिया, वो आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया? see, life is very unpredictable. Life is very unpredictable. It can turn any of the table. That was in my mind. So always my quote and my motto is be you, the world will adjust. ओके. हम्म. Be you, the world will adjust. It's there in my profile also of Facebook. Everywhere it's written, be you, the world will adjust. हमको दुनिया के लिए खुद को एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. अगर दुनिया को आप चाहिए तो वो आपसे एडजस्टमेंट करेगी.
वो मेरा मानना है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत स्ट्रांग है ये कि बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। नथिंग एल्स मैटर्स, यू आर व्हाट मैटर्स। बहुत स्ट्रांग कोट है ये। और आई थिंक यस, मैं क्योंकि मेरी भी लाइफ ऑलमोस्ट इट्स वेरी सिमिलर टू यू। और मुझे भी ये था क्योंकि मैं भी सब बहुत पीपल प्लीजिंग थी, सबके लिए करती हम्म। थी, खुद के लिए कभी कभी नहीं सोचती थी। और जब मेरे को मेरे मेंटोर मिले और मेरे को एक एक पर्पस मिला लाइफ का, सो जो जो शिफ्ट आया है, मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है और मेरे में इतनी रेजिलियंस है। तो उसको फाइंड आउट करना, उसको जब वो आपके सामने खड़ा होता है ना, तो दैट इज अ वेरी यूनिक नहीं, वी एक्सपीरियंस। आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर नॉट लाइक दैट कि हम लोग हमेशा एक स्टेज पे एक स्टेबल रहेंगे। एग्जैक्टली। Sometimes we used to get down, sometimes we used to sit and cry, but like healing and crying alone, that is most. अगर हम दुनिया के साथ ये चीजें शेयर करते, they are going to make fun, they are going to come and give the sympathy, but एग्जैक्ट, no one has faced that what we have faced. या, एवरीवन So स्टोरी इज डिफरेंट, सबकी स्टोरी अलग है। yeah, तो for me, my resilience was my son. हम्म, To raise him a good human being, because like it was been told by my in-laws every time कि ये लाइफ में कभी कुछ नहीं करेगा, तो कितना भी भाग ले पढ़ाई के लिए ये वो, he is not going to do anything. हम्म, But where today I'm seeing him and like what I have raised him, so it's like totally I thank myself only and thank Allah that आपने मुझे इतना सारा वो दिया कि मैं एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को मैंने, बिकॉज सी, इवन इट्स योर रिलीजन और इन माय रिलीजन, मरने के बाद ऊपर वाले को सबको जवाब देना ही है। तो एग्जैक्ट, कितने अच्छे कर्म आपने दुनिया में किए, कितने बुरे कर्म आपने किए हैं, वो सबका आपको रिप्लाई तो देना ही है। तो उसमें सबसे बड़ा रिप्लाई ये आएगा कि आपने आपके बच्चे को कैसे रेस किया, द तरबियत, एग्जैक्टली। द तरबियत व्हाट यू गेव टू योर चाइल्ड, हम्म। आपने उसको कैसे रेस किया। तो थैंक यू तो रहनुमा, लाइक बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और बात करनी है बट लेकिन वही टाइम का एक कंस्ट्रेंट है। 1 मिनट, टाइम का कंस्ट्रेंट है कि तो मतलब मेरे को जो जो क्वेश्चंस पूछने थे ना मेरे को आपसे, वो मैं मतलब मैंने तो पूछे हैं, बट द थिंग इज कि होप कि व्यूअर्स को भी वो एक स्ट्रेंथ दे, एक करेज दे, एक रेजिलियंस दे। तो एक मैं छोटा, सबको या, मैं अब, सबको एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि लोग जब आपसे मिले ना, तो उसके चेहरे पे आपसे बात करते हुए स्माइल आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्जैक्टली, आप किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट छोड़ते हो। अभी ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो मेरे उस पे अगर सब आए फ्यूनरल पे, तो ऐसा नहीं बोले हाय मर गई अच्छा हुआ। राइट, अरे यार कोई आए तो ऐसा बोल के जाए कि वी लॉस्ट समथिंग प्रेशियस, राइट। और एक ऐसा। लेगेसी छोड़ के जाना है, एक कुछ तो उनके लिए आगे बढ़ने के लिए। तो एक छोटा सा रैपिड फायर है, फन रैपिड फायर है जो मैं आपसे पूछूंगी। अ कोट यू लिव बाय। बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। अ बुक दैट चेंज योर लाइफ। माई स्टोरी। One habit you can't live without. वन हैबिट, लिसनिंग टू सॉन्ग्स। Okay. And what does thriving mean to you in one word? Thriving means something what we are missing and what we achieve. That's thriving for me. Great. Thank you so much, Rehnuma. And thank you for opening up such powerful reflections from your journey. Simply loved it, simply loved the conversation with you. And your transformation actually reminds us of the growth. That growth isn't always loud. जैसे आपने बोला ना, वो loud होने की ज़रूरत नहीं है. It has to be meaningful, and it is often found in the quiet strength of a woman who chooses purpose over fear and creativity over chaos. और वो मेरे को आपकी जर्नी से दिखाई दिया, and I'm Thank absolutely you. amazed by your journey. So from overwhelming challenges to leading with vision, that is what you are, and you have shown us how resilience, self belief and service can shape a truly meaningful life. जो आपकी लेगेसी है, जो आप देख के जा रहे हो,
और दे के जाओगे जब भी आप, मतलब whenever. तो thank you so much for such a beautiful conversation and such an impactful conversation. और हमारे listeners के लिए भी कि अगर आपको रहनुमा की स्टोरी ने मूव किया है, so let it be a gentle nudge that transformation is always where you are right now. Right? Transformation is possible no matter where you are right now. अभी आप जहाँ पे भी हो उधर से भी आप उठकर खड़े होकर चल सकते हो. ऐसा नहीं है कि मेरे को सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा तब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी, अभी नहीं, शायद 2 साल के बाद करूँगी जैसा मैं सोचती थी, अभी बच्चे छोटे. ऐसा नहीं है. जब जब आँख खुली तब सवेरा हो गया, आप उठो और आप चल पड़ो. राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. So once again, thank you so much. And this is your host, Jyoti Upadhyayala, signing off from Thrive Podcast by Dr. Zakia, NLP and Business Hub, with a promise to come back soon with more stories like Rehnuma stories that will inspire you to your core. So if you found value in this conversation in today's episode, don't forget to subscribe, like and share, and leave us a review. So one last word, if you have, Rehnuma, if you want to say something to our viewers, and then we will call it a day. So for viewers, my one message is कि don't wait for the right time. Time is with you. You can choose your right time. Always the time is with us only, but it has to be chosen by us. Exactly. Time will never choose you because time has to go fast and time is moving fast. So my one word to the to the audience and all entire those who are listening in this world, that always don't leave your hope. Always have your hope in you. Be yourself. Don't think that what other people are going to say, and never wait for the right time. Choose your right time. Absolutely, and wonderful, wonderful message for all the viewers, क्योंकि this is most important कि don't wait for the time. आज अभी आपको कुछ, you never know, अगर इस एपिसोड ने आपकी कुछ आंखें खोली है या कुछ कहीं ना कोई छोटा सा नच किया है, इसको ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक रिव्यू छोड़िए कि आपको क्या अच्छा लगा है. What one thing that you resonated with when Rehnuma was sharing her story with us. With this, keep thriving, keep rising, and do subscribe so that you will be updated about our next episodes, coming episodes. और भी बहुत पावरफुल स्टोरीज हैं हमारे पास और बहुत पावरफुल लोग हैं जिनकी स्टोरीज आपको आप तक पहुंचाने के लिए ही ये थ्राइव पॉडकास्ट है. So once again, thank you so much, Rehnuma, and stay safe, stay healthy, and keep thriving, keep inspiring people. Thank you so much. Thank you so much, and giving me a chance to join your podcast. And thanks to especially Dr. Zakia's NLP and Business Hub. Sure, I will share your message with her, definitely. Yeah. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Thank you.